Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nayyar. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorial. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. Today we shall bring a new topic, inheritance. This topic, though, it will be making use of the old concepts only, classes and objects that we have been learning till date. All previous topics that we covered in previous sessions, classes, objects, uh, be it functions, constructors, this pointer, everything will be using here in inheritance as well. So if you have any doubts related to any previous topic, please you can watch the videos or you can contact me. I can explain you the things again. So this is something new that we are about to start today. It is inheritance. So first of all, let us look at the definition or description of inheritance, that what inheritance is all about. So the first definition for inheritance can be, it provides us the capability, it provides capability to one class to inherit properties from another class. Now, while describing this term inheritance, we are using the word inherit, and I'll say this is recursive definition. It may not give you clear picture. So let us look at the second definition. It says that it is the mechanism of creating new specialized classes from pre-existing classes. आप किसी तरीके से भी define कर सकते हैं. You can define it like the way I've defined in the first definition or the second one. I think that second one is a better way of defining inheritance. It is a mechanism, of course, no doubt, and it will allow us to create new and specialized classes from pre-existing classes. So if you recall, while learning classes and objects, initially we discussed some object-oriented concepts. And among those concepts, we discussed that we have data hiding, abstraction, we discussed encapsulation, polymorphism, and this term inheritance also we discussed. थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था कि what inheritance is all about. So I'll again put a question to you. If you have a parent class and if you have a child class, then which statement you think is a correct one? Should we say parent is a subset of child, or should we say child is a subset of parent? I asked you this question earlier also. Those who are saying parent is subset of child are right, and those who say child is subset of parent, they are technically wrong. Child class cannot be a subset. Child class को क्या होना होगा? Superset. Why superset? Because child class will ultimately get everything from the parent class, as well as child class will be adding or may add something new in its definition. तो child class में पेरेंट्स से मिली हुई सारी चीजें तो होती ही हैं, साथ ही साथ कुछ नई चीजें भी ऐड की जा सकती हैं, या दूसरे शब्दों में, लेट मी पुट द थिंग्स अदर वे अराउंड. Child class creation is only justified when you say that you wish to add something new. ज्यादातर केसेस में क्या होना चाहिए? चाइल्ड क्लास में कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो पेरेंट में नहीं था, चाइल्ड में नए रूप से डाला गया है. इफ योर चाइल्ड क्लास इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पेरेंट, चाइल्ड कहती है जो कुछ पेरेंट में था वो मुझे मिल जाएगा और मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नया ऐड नहीं करूंगी, तो उस चाइल्ड क्लास का यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस जस्टिफाइड नहीं माना जा सकता. ठीक है, दुनिया में आए हो तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना होगा ना, वरना चाइल्ड क्लास क्यों बनाई? मैंने आपको एग्जांपल दिया था. आप लोग भी जब कॉलेज में आते हो तो एक दूसरे को पहले जानते नहीं हो, फिर यू फॉर्म ग्रुप्स, यू बिकम फ्रेंड्स, देन with due course of time it generally happens what that you break down into sub groups. वो जो 10 या 15 बच्चों का ग्रुप बना, वो क्या हो गया? 5 और 9 बच्चों के ग्रुप में टूट गया. तो ये टूटा क्यों? एक बड़ा ग्रुप दो सब ग्रुप्स में डिसॉल्व कब होता है? जब कुछ ऐसा होता है जो डिफरेंसेस कहलाते हैं, उसको हम कहेंगे डिफरेंसेस आ गए. डिफरेंसेस क्या आ गए? दोज डिफरेंसेस कैन बी सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, है ना, कुछ भी कारण हो सकता है. इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का गेमिंग में हो सकता है, किसी का नेटवर्किंग फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है. तो सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं और उस इंटरेस्ट के हिसाब से या और कारणों के हिसाब से
आप अपने अलग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जब मैं आपको कहूं कि जो कारण आपने ढूंढे थे जिसकी वजह से आपने अलग ग्रुप्स बनाए, उन कारणों को भूल जाइए। फॉरगेट दोज रीजंस विच सेट यू अपार्ट। तो क्या होगा, जैसे ही आप वो रीजंस भूल जाएंगे, देन यू विल अगेन फॉर्म अ सिंगल ग्रुप, आप एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, है ना। तो चाइल्ड कब होता है, चाइल्ड क्लास जो बनती है वो क्या होती है, कुछ ना कुछ ऐसा था जो पेरेंट क्लास में नहीं था, चाइल्ड के पास है, इसीलिए तो चाइल्ड बनी है। तो चाइल्ड को हमेशा स्पेशलाइज्ड क्यों बोला जाएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। से फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्लास पर्सन। पर्सन, you are a person, I am a person, your parents are person, they'll belong to person class, even my parents will belong to person class. Simply speaking, person class means what, any human being, कोई भी हो सकता है। that human being can be a politician, can be a scientist, engineer, doctor, anyone, they can be our relatives as well। तो person class में क्या है, जनरल टर्म्स में बोल दिया person। अच्छा, अब ये पर्सन के पास क्या क्या चीजें होंगी रियल वर्ल्ड में, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पर्सन, every person will have some name assigned to the body। सबको एक यूनिक नेम होगा सबका। ठीक है, यूनिक जरूरी नहीं है, सेम नेम भी हो सकते हैं, संजय सिन्हा नाम के 4 लोग हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और सब। तो नेम ऐसा कोई जरूरी नहीं है यूनिक हो। हाँ, यूनिक फील्ड रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर इन अमेरिका। तो you can assign them some unique properties also, but for sure every person will definitely have some name, and every person will have a date of birth। ये तो दो कॉमन चीजें हो गई जो हर पर्सन पे होंगी। मगर यूजिंग दिस पर्सन क्लास, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट सब क्लासेस, एंड व्हाइल क्रिएटिंग सब क्लासेस व्हाट वी कैन डू, we can decide some properties which were which I'll say that these are new properties, like say for example I feel like creating employee class। तो एम्प्लॉय क्लास बनाओगे तो पर्सन और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होना चाहिए, your person class simply had 2 attributes, the name and date of birth। But when we talk about employees, employees generally have some additional characteristics, like employee will be specialized in some field, employee will definitely get some salary also। So employees basically they have certain attributes which are generally not part of the general person class। Similarly, you can assume a class like student। तो स्टूडेंट भी तो एक पर्सन ही है बेटा। तो स्टूडेंट में और एक पर्सन क्लास में क्या फर्क आ गया, स्टूडेंट ऑल्सो हैज अ नेम, स्टूडेंट ऑल्सो हैज सम डेट ऑफ बर्थ। तो मतलब 2 प्रॉपर्टीज जो पर्सन में थी वो स्टूडेंट में भी आ गई। मगर स्टूडेंट के पास एक और प्रॉपर्टी आ गई जो हर पर्सन पे नहीं होती है, वो एक्स्ट्रा क्या चीज आ गई स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट एनरोल्स इन सम कोर्स, स्टूडेंट ज्वाइन सम कोर्स, वो किसी कोर्स का पार्ट होता है, कुछ पढ़ रहा होता है, मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो आप देखो, पर्सन के पास जो चीजें थी, एम्प्लॉय के पास एक चीज ज्यादा थी, सैलरी या जॉब स्किल्स। उसी तरीके से स्टूडेंट के पास भी क्या हुआ, एक चीज ज्यादा है पर्सन से, और वो क्या है, ही और शी इज पार्ट ऑफ सम पर्टिकुलर कोर्स। तो ठीक है, समझ में आया। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग न्यू एंड स्पेशलाइज्ड क्लासेस। तो वर्ड स्पेशलाइज जो है वो ध्यान रखना है, स्पेशलाइज्ड होती हैं क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है जो उसको ऊपर वाली क्लास से अलग बनाता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग क्लासेस। प्री एग्जिस्टिंग क्लासेस आर पेरेंट क्लासेस। अच्छा, इन मेनी बुक्स यू विल फाइंड देम राइटिंग लाइक दिस, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। अच्छा, कुछ किताबें पेरेंट चाइल्ड लिखती हैं, तो सम बुक्स यू विल फाइंड दैट दे हैव रिटन सुपर क्लास एंड सब क्लास, ऐसा कुछ बोलेंगे। ठीक है, और कुछ क्लासेस क्या बोलेंगे, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। तो पेरेंट बोलूं, बेस क्लास बोलूं, सुपर क्लास बोलूं, एक ही चीज। मैं चाइल्ड क्लास बोलूं, मैं सब क्लास बोलूं, या मैं डिराइव्ड क्लास बोलूं, एक ही बात होती है। तो अलग अलग बुक्स में जो नॉमेनक्लेचर है या जो टर्म्स यूज किए गए हैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, वो अलग अलग अक्सर देखने को मिल जाते हैं, मीनिंग उनका यही होता है। सो मूविंग फर्दर, let us look at the concept of inheritance। The concept of inheritance say that we have a base class। Base class has some properties। ये properties क्या हो सकते हैं, whenever you create a class, you add some data fields to the class, and as well as you can have some functions attached to the class। तो जो बेस क्लास आप बनाया करोगे, अभी तक देखो आपने डिस्टेंस क्लास बनाई थी, काउंटर क्लास यू क्रिएटेड, स्टूडेंट क्लास यू बिल्ड,
So all those classes that you have been building in a class, what you generally put is data member, and in the private section, which is kept in the private section, and in the public section we generally store functions. तो ये सारी चीजों को जो प्रॉपर्टी बोला गया वो समझ में आ रहा है ना, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जैसी कुछ बात हो रही है। तो बेस क्लास के पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सब लोग जानते हो, आप लोगों ने बनाए हैं, वो कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, वो नॉर्मल फंक्शंस भी होते हैं, और वो डेटा मेंबर्स भी होते हैं। Now using this concept of inheritance you can build a derived class. तो इस बेस क्लास से क्या किया हमने, डिराइव किया एक चाइल्ड क्लास को, जिसको कि चाइल्ड बोलें या डिराइव्ड बोलें या सब क्लास बोलें, जो मर्जी बोल लो, चीज तकरीबन एक ही है। उसके अंदर क्या दिखाया है इस डायग्राम में कि यू हैव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ए बी एंड सी फ्रॉम द पेरेंट, आप ये नीचे देख सकते हैं, एंड यू हैव एडेड समथिंग न्यू। ये जो प्रॉपर्टी डी है ये वो चीज है जो आपने नई है और आपने अभी अभी ऐड की है। ये प्रॉपर्टी डी कोई एक नया फंक्शन हो सकता है, ये प्रॉपर्टी डी कोई एक नया डेटा मेंबर हो सकता है, या ये प्रॉपर्टी डी में क्या हो सकता है, डेटा मेंबर और फंक्शन दोनों भी हो सकते हैं। तो आप अपनी चाइल्ड क्लास को बनाते समय पेरेंट क्लास की सारी चीजें इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप कुछ नया भी ऐड कर सकते हैं। चलिए देखिए, so defined in the derived class means what? This property D exclusively belongs to this derived class only. It was not available in parent, and whatever you see below is defined in the base but is accessible from the derived class. तो जो कुछ यहाँ बनाता वो यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया, है ना। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ में अगर आया है, नहीं आया तो क्वेश्चन पूछिए, और इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन। My question is that what is the need of this concept, why one should learn inheritance, इसकी जरूरत क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो हम इसे सीखें। आप एक ये ऊपर वाली क्लास अलग और ये नीचे वाली क्लास अलग भी तो बना सकते थे, इस बेस क्लास से ही चाइल्ड बनाई जाए, ऐसा क्यों किया जाए? Reusability. यस, रीयूजेबिलिटी को कोई मना नहीं कर सकता। रीयूजेबिलिटी इन अ सेंस the data member and member functions which you create in base you do not need to code them again, उनको दोबारा से कोड करके लिखने की जरूरत नहीं होती है, your code becomes reusable, ठीक है। सो इकोनॉमी ऑफ कोड कह सकते हैं, रियूजेबिलिटी ऑफ कोड कह सकते हैं, जैसे मर्जी कहिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। व्हाट अदर रीजंस कैन बी देयर फॉर लर्निंग दिस टॉपिक इनहेरिटेंस? अच्छा, दूसरी चीज क्या है, देखो मैं आपको कुछ और रीजंस देता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि मुझे ये बताओ, क्या इसमें चाइल्ड क्लास को बनाते हुए प्रॉपर्टी डी यानी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना मस्ट एंड शुड होता है क्या? ठीक है, इवन इफ यू डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द चाइल्ड क्लास, यू सिंपली इनहेरिट एंड आप उसमें कुछ नहीं ऐड करना चाहते, चलेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज है, मेरे पास एक बेस क्लास है जिसका ओनर कौन है, मैं खुद उसका ओनर हूं, ठीक है। मैंने इसमें कुछ फंक्शनैलिटी और कुछ डेटा फील्ड्स ऐड किए हैं। आप हो, आप कहते हो सर मुझे प्लीज अपनी क्लास यूज कर लेने दीजिए, तो ये कैसी सी बात है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं, मेरी बनाई हुई चीज को यूज करना चाहते हैं। एक तो तरीका है कि मैं आपको डायरेक्ट इस पे एक्सेस दे दूं और कहूँ आप बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाओ बेटा, यूज कर लो, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इनहेरिटेंस का क्या कहता है कि नहीं, मैं आपको अपनी क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने दूंगा, आप मेरी क्लास की एग्जैक्ट रेप्लिका इनहेरिटेंस से बना लीजिए और अपनी बनाई हुई क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाइए और उसको यूज करते रहिए। अब इन दोनों बातों में फर्क क्या है, देखो, मैं अपनी ऊपर वाली क्लास अगर आपको दे दूं और मेरे पास दो फंक्शन से प्रॉपर्टी बी और प्रॉपर्टी सी, आप एज इट इज इनहेरिट करते हैं अपने पास, ठीक है। तो इनहेरिट करते समय आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या कहेगा कि द फंक्शन व्हिच वाज रिटन इन द बेस कैन बी इनहेरिटेड इन द चाइल्ड, नाम उसका वही रहेगा प्रॉपर्टी बी, but its body can be slightly or completely modified by you. Child will be allowed to modify the body of the function which it inherits. ठीक है, अगर मैं आपको ओरिजिनल क्लास दे देता और आप इसी फंक्शन को बदल देते, तो आपने तो मेरे ही फंक्शन को बदल डाला बेटा। अब मेरे को काम करना है तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं कहूंगा मेरे फंक्शन को चेंज क्यों किया, व्हाई डिड यू चेंज द कोड, यू सिंपली वांटेड टू यूज इट, आपने यूज किया होता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यू हैव चेंज द कोड,
आप मेरे घर आते हो, मुझसे कहते हो सर अपनी कार दे दीजिए, मुझे कार की कीज दीजिए, मुझे कार यूज करनी है, मैं आपको कीज दे देता हूँ, आप मेरी गाड़ी ले जाते हैं जो कि सिल्वर कलर कार थी, और जब वापस आप मेरे घर लेके आते हैं तो आप उसको रेड कलर का पेंट करवा लाए, आपने मेरी कार को चेंज कर दिया। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि ये आपने किससे पूछ के किया? आपने मेरी कार की एसेसरीज को, कलर को, किसी भी तरीके से मेरी कार की प्रॉपर्टी को चेंज क्यों किया? मैं आपको ये नहीं करने देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आपको कहूंगा इनहेरिटेंस का यूज कीजिए, मेरी सारी चीजें इनहेरिट कर लीजिए, और जब ये आपके पास इनहेरिट होके चली आएंगी तो वहां पे आप जैसा चेंज चाहें कर लीजिए। यू कैन मॉडिफाई द फंक्शंस द वे यू वांट। This is what is known as function overriding. I'll be teaching you this concept programmatically. You will be learning this. आगे स्लाइड्स में आएगा। तो रीजन समझ में आया? इनहेरिटेंस में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि नई चीज ऐड हो। ऐड करना चाहते हो ये रिकमेंडेड है, मगर हमेशा करोगे ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन स्ट्रेट अवे इनहेरिट माई प्रॉपर्टीज, यू कैन रीडिफाइन द फंक्शंस एंड यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद देम। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सी प्लस प्लस में तो नहीं, इसको देखना है तो इसकी ब्यूटी असली नजर आएगी जावा जैसी लैंग्वेज में। जावा में क्या होता है बेटा, बहुत सारी रेडीमेड क्लासेस बनाई गई हैं, बहुत सारा रेडीमेड कोड अवेलेबल है। उस रेडीमेड कोड में क्या है, उन्होंने जो फंक्शंस बनाए हैं ना, वो इनकम्प्लीट फंक्शंस बनाए हैं, फंक्शन के हेडर्स लिख दिए हैं। कुछ बच्चों को याद हो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती थी अगर जावा पढ़ी हो, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, वो जो फंक्शन इनकम्प्लीट होता है आप उसे इनहेरिट करते हैं और उसे कंप्लीट कर लेते हैं दी वे यू वांट। आप उस फंक्शन को चेंज कर लेते हैं ओवरराइडिंग से। तो जावा में तो बहुत ज्यादा यूज होती है ये सारी चीज। सी प्लस प्लस में क्योंकि रेडीमेड क्लासेस आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं इनिशियली एटलीस्ट, तो आपको वो चीजें नजर नहीं आती हैं। मगर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, आई एग्री, इट इज वन ऑफ द रीजन एंड इट इज something we can say it is important reason for using inheritance. The other reason is it will allow you to override functions and modify them in your child class the way you want. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इनहेरिटेंस को पढ़ने के। आगे जैसे जैसे कोड और आगे जाएगा, स्लाइड में आगे आगे देखेंगे तो चीजें नई नई सामने आती जाएंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, एल्स लेट अस लुक एट नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अबाउट लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। rather than levels we can say types of inheritance. ठीक है, levels ना बोल के हम types बोलें तो ज्यादा अच्छा है। So you can have a inheritance that is single level, you can have multi-level inheritance, multiple inheritance, hierarchical and hybrid. ये सब क्या होते हैं, I'll just show you. Single level inheritance क्या कहता है उसको देखिए। You have one base class and one derived class, that's it. इस derived से आगे कुछ नहीं बना है। अगर एक क्लास और उसका एक चाइल्ड, एक पेरेंट, उसका सिर्फ एक चाइल्ड, चाइल्ड का आगे कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। मैंने क्या बोला, पेरेंट, चाइल्ड एंड नो फर्दर ग्रैंड चिल्ड्रन, तो इसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इन दिस यू ओनली हैव वन बेस एंड वन डिराइव्ड। नाउ नेक्स्ट इज मल्टी लेवल। मल्टी लेवल you have one base class, you have one child and you have one grandchild as well. So whenever you derive a class from a derived class, मैंने क्या बोला, deriving a class, नीचे देखो कर्सर, deriving a class from a derived class is multi-level inheritance. मैंने C को बनाया, C एक derived है, और उसको किससे बनाया, एक ऐसी क्लास से जो ऑलरेडी derived थी। So I have derived a class from already derived class. So this is what is known as multi-level inheritance. This chain can be extended up to any level. A से B, B से C, C से D, D से E, जितनी मर्जी लेवल पे आप ले जाइए। ये कंपनी की हायरार्की में काम में आने वाली चीजें होती हैं। टॉप लेवल you have CEO of the company, then you can have regional managers, then you can have sales managers, and under sales manager you can have another classification of general manager. तो हायरार्की कितनी आगे तक जाएगी रियल लाइफ में डिपेंड करता है, आप जिस कंपनी के लिए कोड डिजाइन करेंगे वहां की हायरार्की क्या है उसके हिसाब से चलेगा। So I think multi-level inheritance definition should be clear. Now let us look at the third category. This is multiple inheritance. This again is very important. This particular inheritance say that we have two base classes and using these two base classes we will derive a child.
दो बेस से चाइल्ड का बनाया जाना, मतलब कुछ सामान ए का कुछ सामान बी का उठाया और अपनी सी को बना लिया, अपनी चाइल्ड क्लास सी को क्रिएट किया. So in this your child class C will get properties from A and will get properties from B as well. तो चाइल्ड सी के पास में दोनों ही क्लासेस के प्रॉपर्टीज बोले तो फिर याद रखना डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनहेरिट हो जाते हैं. मैंने आपको ऐसा नहीं कहा है कि सारी चीजें इनहेरिट हो जाएंगी, ठीक है. कुछ चीजें इनहेरिट होती हैं, कुछ चीजें इनहेरिट नहीं होती हैं. कंडीशंस अप्लाई. कंडीशंस अप्लाई में क्या पढ़ेंगे, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा. प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक स्पेसिफायर्स. तो कुछ चीजें जो इनहेरिट होती हैं वो प्रोटेक्टेड वाली हैं, प्राइवेट वाली चीजें इनहेरिट नहीं होंगी, पब्लिक वाली इनहेरिट होंगी. तो इस सब कॉम्प्लेक्सिटी अभी ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, अभी आगे आपको समझ में आएगा. एज ऑफ नाउ लेट अस कीप थिंग्स सिंपल. Class A will have some properties, class B will also have some properties selectively, or the entire properties can be inherited by C. सारी भी ला सकते हो, कुछ चुनिंदा प्रॉपर्टीज भी ला सकते हो. ये आप कंट्रोल कर पाओगे आगे जब आप कोड में देखोगे. So this was multiple inheritance. Definition is simple. In this inheritance, we have more than one independent base classes and one derived class connected with all base classes. Moving further, let us look at hierarchical inheritance. This is what is actually used in company hierarchy. If you will be developing some software for some particular company, that company will definitely have some hierarchy for employees. And in order to depict that in a hierarchy, you can code accordingly. Top, as we mentioned, we have CEO, one side we can have regional manager, the other side we can have some other type of manager. या यहाँ पे बोल सकते हो पर्सन है, यहाँ पे इधर एम्प्लॉय है और इधर स्टूडेंट है. कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे तो टॉप यू कैन एज्यूम अ क्लास पर्सन. दैट पर्सन कैन बी सब क्लास एज एम्प्लॉय, फैकल्टी भी बोल सकते हो, और योर पर्सन कैन बी सब क्लास एज अ स्टूडेंट जो कि चाइल्ड कहलाएगा. तो ये हायरार्किकल है. ये भी कितना भी आगे ले जाया जा सकता है. बी से फिर कितनी मर्जी क्लासेस बना लीजिए, सी से जैसा मर्जी कर लीजिए, बी सी से मिलके कोई एक डिराइव क्लास बना लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द लास्ट कैटेगरी हाइब्रिड. Why hybrid? Because it is a combination, it represents a combination of more than one type of inheritance. In this, if you see, we have multi-level. A से C बनी, C से D बनी. तो multi-level भी दिख रहा है, hierarchical भी दिख रहा है, A से B और B से C. और साथ ही साथ एक और कैटेगरी दिख रही है जिसे कहते हैं मल्टीपल. B and C have been used to create D. तो D क्या है, वो B और C से बनेगी. मतलब क्लास D is created using multiple classes. So this is an example of multiple inheritance. Here you can see hierarchical inheritance and multi-level, of course it is there. 3 लेवल का इनहेरिटेंस है. तो क्योंकि कई सारे इनहेरिटेंस का ढेर लग गया यहाँ पे, तो इसका नाम क्या रख दिया, हाइब्रिड रख दिया. तो कुछ किताबों में ये लिखा हुआ मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा. कोई पूछ ले क्या होता है, तो भाई ये होता है, आपको बता दिया मैंने. सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन. तो ये किताबों में होता है, एग्जाम में भी कई बार छोटे मार्क्स में वेटेज में आ जाता है, तो उसमें लिख देना क्या है, सारी चीजें सिंपल हैं. कोई क्लास के नाम भी याद नहीं करने, ABCD नॉमेनक्लेचर है, बहुत आसान है, कुछ भी लिख सकते हो, XYZ भी लिख सकते हो, ठीक है. चलो, नाउ this is something which is important, and this is going to bring in some subtle difference in inheritance. So let us look at the qualifiers. Public you are already familiar with. Public is something that is that can be accessible in the class, in the outside world also. तो जो कुछ भी क्लास के पब्लिक सेक्शन में रखा जाता है वो क्लास में भी नजर आता है, क्लास के बाहर किसी भी फंक्शन में, चाहे वो मेन हो या वो कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन हो. पब्लिक डेटा और पब्लिक फंक्शंस कैन बी एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले. देन वी हैव प्राइवेट. Private members, whatever you store in private, be it data member or any function, if you store anything in private, then in that case only your class can access it. क्लास के बाहर वो सब चीजें एक्सेस नहीं होने वाली हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती हैं. आपका जो क्लास का प्राइवेट डेटा होता है वो सिर्फ क्लास में एक्सेस हो जाता है. क्लास के बाहर उसको एक्सेस करने के लिए आपको मेंबर फंक्शंस बनाने पड़ते हैं जो पब्लिक सेक्शन में लिखे जाते हैं. तो पब्लिक और प्राइवेट आपने पहले से पढ़ा हुआ है. नाउ दिस प्रोटेक्टेड इज द थर्ड वन. तीन ही होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. लेट अस लुक एट व्हाट प्रोटेक्टेड इज ऑल अबाउट.
This protected access specifier is especially designed for inheritance. इसका बिना इनहेरिटेंस के कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है. अगर इनहेरिटेंस ना हो आपके कोड में, आपने कोई इनहेरिटेंस करना ही नहीं है मान लीजिए, तो ये प्रोटेक्टेड के कोई मीनिंग नहीं रह जाएंगे. प्रोटेक्टेड विल सिंपली बिहेव एज प्राइवेट. प्राइवेट डाटा के बारे में क्या पढ़ा था? सिर्फ क्लास में एक्सेस होगा, क्लास के बाहर एक्सेस बिल्कुल नहीं होगा, यही पढ़ा था ना आपने. तो प्रोटेक्टेड के बारे में भी वही बात है, सिर्फ क्लास में एक्सेस होगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा. फिर आप कहोगे सर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में फर्क क्या है? प्राइवेट डाटा इनहेरिटेंस में इनहेरिट नहीं हो पाता. प्रोटेक्टेड डाटा इज इनहेरिटेबल, दैट इज द ओनली डिफरेंस. प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में फर्क क्या है? जो चीज प्राइवेट होगी, इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि क्लास के अंदर ही एक्सेस होगी, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगी, और क्लास के बाहर चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं होगी. मगर प्रोटेक्टेड क्लास में एक्सेस होगा, क्लास के बाहर तो नहीं होगा, मगर चाइल्ड में पहुंच जाएगा. इतना फर्क समझ में आया? A member declared as protected is accessible by the member functions within its class, any class immediately derived from it. मगर इसमें नहीं था. They cannot be inherited by child. Private cannot be inherited by child, but protected can be inherited by child. They are inheritable. This is the only difference. ठीक है? समझ में आ गई बात? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. पब्लिक हर जगह एक्सेस हो जाता है, प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेस होता है, प्रोटेक्टेड दो जगह पे एक्सेस हो जाएगा, अपनी क्लास में और चाइल्ड क्लास में, बाहर नहीं. बाहर तो प्राइवेट भी नहीं, बाहर प्रोटेक्टेड भी नहीं. मेन में तो दोनों ही एक्सेस नहीं होंगे, चाहे प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो. मगर प्राइवेट इतना टाइट है सिक्योरिटी कि प्राइवेट डाटा तो इनहेरिट ही नहीं होता है, प्राइवेट फंक्शंस इनहेरिट ही नहीं होते हैं, मगर प्रोटेक्टेड चीजें इनहेरिट हो जाती हैं. चलो, लेट अस लुक एट दिस कोड. This is the old counter class that we discussed in our previous chapter while we were learning operator overloading. If you recall, if you remember that we overloaded plus plus operator, the increment operator. Overloading पढ़ते समय इसको overload किया था आपने, तो ये क्लास थी. मगर बेटा अगर आप याद करोगे ना, तो उस काउंटर क्लास के एग्जाम्पल में यहाँ पे प्रोटेक्टेड की जगह पे प्राइवेट लिखा होता था, तभी मैंने यहाँ पे आपको वो रेड कलर में दिखाया. In our example, instead of protected, we had private written here. ठीक है? अब यहाँ क्या आ गया है? प्रोटेक्टेड आ गया है. क्यों? क्योंकि मेरे को आपको इनहेरिटेंस पढ़ाना है. अगर मैं यहाँ प्राइवेट लिखूंगा तो काउंट इनहेरिट नहीं होगा. मैंने क्या कहा? अगर प्रोटेक्टेड लिख दोगे, प्राइवेट लिख दोगे, तो काउंट डेटा मेंबर इनहेरिटेबल नहीं रहेगा. अब सवाल यह है कि सर इनहेरिट क्यों करना है, कैसे करना है? तो देखो, काउंटर क्लास जब आपने पढ़ा था, तो काउंटर क्लास में आपको बताया था कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टर था, एक गेट काउंट था, एक प्लस प्लस फंक्शन था जो इंक्रीमेंट को ओवरलोड करता है, एक सेट काउंट था. बस इतना सा काम था. इस क्लास के अंदर हमारे पास काउंटर को डिक्रीमेंट करने वाला कोई फंक्शन नहीं है. ध्यान से देखिए, आपकी इस क्लास में यू हैव अ फंक्शन दैट कैन इंक्रीमेंट काउंट, बट वी डू नॉट हैव अ फंक्शन दैट कैन डिक्रीमेंट काउंट. ठीक है? तो काउंटर क्लास में इंक्रीमेंट का प्रोविजन तो है, डिक्रीमेंट का प्रोविजन नहीं है. तो मैं क्या करूंगा? एक डी काउंटर क्लास बनाऊंगा. उस डी काउंटर क्लास में मेरी ऊपर वाली क्लास की काफी सारी चीजें इनहेरिट होंगी. काफी सारी बोला है, कुछ चीजें इनहेरिट नहीं होती हैं. हमेशा याद रखना, कंस्ट्रक्टर्स कभी इनहेरिट नहीं होते हैं. कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज में एक चीज और जोड़ लेना, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेबल. ये कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे. यू हैव ओनली वन कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, दिस कैनॉट बी इनहेरिटेड. बाकी चीजें, काउंट क्योंकि प्रोटेक्टेड है, इनहेरिट हो जाएगा. ये फंक्शन इनहेरिट हो जाएगा, ये वाला फंक्शन भी इनहेरिट हो जाएगा, गेट काउंट भी इनहेरिट हो जाएगा. मींस 1, 2, 3 और 4 चीजें ये इनहेरिट हो जाएंगी. समझ में आई बात? 4 चीजें तो यहाँ पे इनहेरिट हो चुकी होंगी. आपको दिखाऊंगा कैसे कह रहा हूँ इनहेरिट, मैं कैसे कह सकता हूँ ये बात, आपको प्रूफ कर दूंगा अभी. मगर 4 के साथ एक 5वीं चीज, क्लास का नाम क्या है? डी काउंटर. क्यों बनाई? 4 चीजें इनहेरिट कर ली, 5वीं चीज जो कि डिक्रीमेंट ऑफ काउंटर था, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. दिस इज समथिंग न्यू, और यू कैन से दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू ऐड टू माय चाइल्ड क्लास, सो आई हैव सक्सेसफुली ऐड दैट थिंग टू माय चाइल्ड क्लास. ठीक है? आई हैव एडेड इट हियर. नाउ लेट अस सी
that D counter, since I say it has already inherited 4 things. D counter के पास क्या क्या आ गया? एक तो काउंट आ गया क्योंकि प्रोटेक्टेड है, और पब्लिक वाली चीजों में से कंस्ट्रक्टर छोड़ के बाकी के चारों फंक्शन जो आपके 3 फंक्शन हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों चीजें इनहेरिट हो गई हैं। प्रूव कर देते हैं कैसे? लेट अस लुक एट व्हाट इज देयर इनसाइड मेन। इनसाइड मेन, which class object I am creating? D counter class। तो ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ? डी काउंटर का। सिंटेक्स पे ध्यान मत दो ज्यादा, अभी मैं बाद में समझाऊंगा इसको कैसे लिखते हैं इनहेरिटेंस, अभी समझा दूंगा। ठीक है, पहले पर्पस समझ लीजिए। डी काउंटर क्लास में मैंने डी काउंटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया DC1 प्लस प्लस DC1 लिखा, मतलब मैं काउंटर को बढ़ाना चाहता हूँ। किसके काउंटर को? डी काउंटर वाली क्लास के ऑब्जेक्ट को बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या डी काउंटर में प्लस प्लस है? नहीं है, मगर इनहेरिट हो रखा है ना, आपको कहता है इनहेरिटेंस से वो मिल जाएगा। So just because of inheritance, if you write plus plus DC1, you will not get error. Rather, your count will be incremented. And if you try to show it to the user on the screen, you will get to know that DC1 has been set to 1. Originally, जब default constructor call हुआ तो 0 set हुआ, यहाँ प्लस प्लस होके 1 हो गया। चेक किया तो क्या मिलेगा? 1। देखो नीचे आउटपुट दिखाया है कि 1 आएगा। फिर मैंने DC1 डॉट सेट काउंट किया। याद करो, DC1 चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड सेट काउंट, मींस इट कैन यूज सेट काउंट। इसके अंदर नहीं था मगर इनहेरिट हुआ है। कहां से इनहेरिट हुआ है? सेट काउंट ये लिखा हुआ है, इनहेरिट हो गया ना। इनहेरिट हो गया तो इफ यू कॉल DC1 डॉट सेट काउंट, इफ यू कॉल दिस फंक्शन विद चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, you can do that, and what is going to happen? Your value will become 100. This 1 will be overwritten with new value 100. If you try to print, you will get to see that it is 100. Now comes minus minus DC1. Minus minus DC1 will invoke a function that you have explicitly coded in the child. अब चाइल्ड ने अपने बनाए हुए फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की तो वो एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाएगा। काउंट की वैल्यू जो कि 100 होती, उस 100 को 99 बना के टेम्प में डालेगा, टेम्प को रिटर्न कर देगा। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्लास नेम है, क्योंकि जो कुछ आप रिटर्न कर रहे हैं वो काउंटर क्लास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और आप जब यहाँ पे पहुंचेंगे उसको शो करेंगे तो आपको डाटा देखने को मिलेगा 99। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, मैं सिंटेक्स समझा देता हूँ। जब भी इनहेरिटेंस से चाइल्ड क्लास बनानी होगी तो क्लास बनाने के लिए कीवर्ड क्लास लिखते हैं, चाइल्ड क्लास का नाम लिखा जाता है, एक कोलन लगाया जाता है। कोलन के बाद ये पब्लिक को ध्यान मत दो, यहाँ देखो, उस क्लास का नाम लिखते हैं जिससे आप इनहेरिटेंस करना चाहते हैं, जिसे आप इनहेरिट करना चाहते हैं। माई डी काउंटर क्लास wants to inherit which class? The counter, the counter class. So you will have to write counter here. यहाँ स्पेलिंग में गड़बड़ है, देखो ये C कैपिटल होना चाहिए क्योंकि काउंटर का C कैपिटल है। जब कोड को ब्लाइंडली कॉपी करके मत चला देना सिस्टम पे, चलेगा नहीं वो, क्योंकि एक्चुअली कंपाइलर इज केस सेंसिटिव, योर लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, बस दिस इज पीपीटी। पीपीटी में गड़बड़ हो जाती है टाइपिंग में, ठीक है। तो काउंटर का C बड़ा मन के चलना है, दिस शुड बी कैपिटल C। तो माई डी काउंटर क्लास आई विश टू इनहेरिट काउंटर, तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे 3 चीजें आ सकती थी, पब्लिक आ सकता था, प्राइवेट आ सकता था, प्रोटेक्टेड आ सकता था। तीनों चीजों से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, आगे की स्लाइड में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। अभी पब्लिक लिखना होता है, रट लो, क्योंकि डिफरेंस समझाने के लिए आगे जाना होगा। आगे गए तो ये भूल जाओगे कि क्या चल रहा था। तो वन बाय वन, वन थिंग एट अ टाइम, विल स्टडी। सो इफ you have any doubts till this point, please ask. This is how you can create your child class. And I have demonstrated that child object was giving a call to functions which it inherited. तो ये set count get count इसने inherit किया था, कॉल किया। जी बताइए सर। डी काउंटर हमारी चाइल्ड क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने DC1। बिल्कुल। सर हमने अपनी कोई बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो सर बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो गया? बेटा हमेशा ये भी चीजें सब आपको धीरे धीरे आगे आती जाएंगी, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आपने पूछ ही लिया है तो जब भी आप चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है कंपाइलर। क्यों करता है? वो देखो, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो बेस का कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल कर रहा है? आप समझो चीज को। आप एक चाइल्ड हो, ठीक है, आपको कोई चीज चाहिए, तो कोई चीज आपको कहां से मिलनी थी? पेरेंट क्लास से। अब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना होगा
तो वो चीजें आपको कैसे मिलेंगी? क्लास थोड़ा ना रियल वर्ल्ड में जगह लेती है, रियल वर्ल्ड में जगह कौन लेता है? क्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो चाइल्ड क्लास जब बनेगी, जब DC1 बनेगा, तो DC1 क्या मांगेगा? मुझे काउंट दो। कौन सा काउंट? ये वाला काउंट दो। तो ये काउंट बनाना पड़ेगा ना मुझे। अगर ये काउंट बना ही नहीं होगा तो चाइल्ड को कहां से दूंगा? अगर आपके दादाजी ने कोई मकान बनाया ही नहीं होगा तो आपको कहां से मिलेगा? तो दादाजी का कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, वो एक मकान बिल्ड करेगा और वो मकान आप इनहेरिट करेंगे। समझ में आई बात? तो आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जब आप कंस्ट्रक्ट होंगे, डी काउंटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसको पहले नहीं बनाया जाएगा, पहले दादाजी के ऑब्जेक्ट को बनाया जाएगा ताकि उनका सामान तैयार हो जाए। आप जैसे ही दुनिया में आए वो सामान आपको मिल सके, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट प्रॉपर्टी। The moment this object comes into existence, it will demand certain things. It will demand that please provide me the items which were inheritable, and I should be allowed to inherit them. तो भैया वो चीजें रेडी करनी है कि नहीं पहले? तो जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, कंपाइलर बहुत स्मार्ट है, वो जानता है कि कंस्ट्रक्टर पहले किसका कॉल होना है। वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। ऑटोमेटिकली बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो काउंट रेडी हो जाएगा, काउंट में 0 सेट हो जाएगा, 0 सेट होने के बाद ये इनहेरिट हो जाएगा। इनहेरिट होके जब आपके पास पहुंचेगा तो आप उसको प्लस प्लस करने की कोशिश करेंगे, वो 1 हो जाएगा, 1 आपको नजर आ जाएगा। Am I clear? Any other question? No, sir, no question. No question. Good. Sir, no question. सर अब क्लियर हो गया। अभी हो गया क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया बात है। So this was a simple example to demonstrate inheritance. You had a counter class which you learned earlier also, with one constructor, few functions, operator overloading concept is there. अब देखो ये एग्जाम्पल अगर आप याद कर लेते हो, ये काउंटर डी काउंटर याद कर लिया, तो एग्जाम में कोई कितने तरह के क्वेश्चंस के जवाब में आप इसी एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। आपसे कोई पूछ ले ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो देखो दिख रही है यहाँ पे। आपसे कोई पूछ ले कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो भी यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें नजर आ जाती है। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में पूछा जाए, इससे समझा सकते हैं। इनहेरिटेंस इसी से समझा सकते हैं। काउंटर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर डाला था डिफॉल्ट, एक वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर डाल दो तो फंक्शन ओवरलोडिंग भी समझा सकते हो। ठीक है ना? तो एक ही एग्जाम्पल से कितनी सारी चीजों में वही सेम एग्जाम्पल कोड यूटिलाइज किया जा सकता है। तो जो लोग रटने वाले हैं उनके लिए मैं हर बार उनको बताता रहता हूँ कि ऐसा कर लेना भाई। ठीक है, वैसे रटना तो चाहिए ही नहीं प्रोग्रामिंग को, प्रोग्रामिंग शुड बी प्रैक्टिस। ये तो ऐसी चीज है इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। एनीवे, so I think up till this point things should be clear up to some level. When you'll revise things, you'll revisit the topic, you'll have more questions to ask. तो doubts तो आएंगे ही, देखेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड क्या कहता है? When the base class is privately, देखो पता है यहाँ ये इस टॉपिक में आपको मैं क्या पढ़ाने जाने वाला हूँ, आप वापस चलिए जरा। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, और तीनों चीजों से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। पब्लिक लिखने से क्या होगा, प्राइवेट लिखने से कैसा इनहेरिटेंस होगा, प्रोटेक्टेड लिखने से इनहेरिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, ये चीजें इस विजिबिलिटी वाली साइड में समझाई जाएंगी। थोड़ा सा समझाने के लिए पहले यहाँ आपको बता देते हैं क्या है, कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। देखो जनरली लोग पब्लिक लिखते हैं। पब्लिक लिखने से क्या होता है, ऊपर वाली क्लास का सामान जैसा था वो नीचे वैसे का वैसा आ जाता है। मतलब जो चीज यहाँ प्रोटेक्टेड थी वो चाइल्ड में प्रोटेक्टेड के रूप में आ जाएगी। मतलब ये काउंट चाइल्ड क्लास में पहुंचेगा, वहां पे कैसा होगा, प्रोटेक्टेड था, प्रोटेक्टेड ही रहेगा, पब्लिक में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोटेक्टेड चीज इज इनहेरिटेड एज प्रोटेक्टेड ओनली। ठीक है, एक्सक्यूज मी। पब्लिक थिंग्स, कंस्ट्रक्टर तो मैंने बताया कैन नॉट बी इनहेरिटेड, भूल जाओ इसको, ये तो इनहेरिट होता ही नहीं है, इसकी तो बात ही मत करना। बाकी फंक्शंस की बात करते हैं। गेट काउंट, इट वाज पब्लिक, will be inherited and will remain public. This function was public, will remain public. This function was public, will remain public. अब सवाल यह है कि सारी चीजें यहाँ पे आई, जैसी थी वैसी ही आई। काउंट प्रोटेक्टेड था तो यहाँ प्रोटेक्टेड आ गया। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ? मान लो कोई बच्चा कहे कि सर मुझे डी काउंटर से एक एम काउंटर क्लास बनानी है जो मल्टीप्लिकेशन का काम कर सके। मतलब काउंटर से बनी डी काउंटर,
डी काउंटर से एम काउंटर, तो एम काउंटर बनाओगे तो आपको काउंट की फिर जरूरत होगी कि नहीं होगी? अगर वो प्रोटेक्टेड होगा तो इनहेरिट होगा, और अगर वो प्राइवेट हो गया होता यहाँ पे, तो क्या वो इनहेरिट होता? इनहेरिट नहीं होता। ठीक है, ऊपर प्रोटेक्टेड था, पब्लिक की वजह से यहाँ भी प्रोटेक्टेड ही आएगा और आगे भी इनहेरिट हो पाएगा। ये बात जाननी समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे प्राइवेट लिख दिया तो ऊपर का सामान जो नीचे आता है वो सब प्राइवेट बन जाता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट लिख दूं तो ऊपर से काउंट यहाँ तो आएगा, मगर यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्राइवेट। अगर यहाँ आके प्राइवेट हो गया तो क्या एम काउंटर क्लास में अवेलेबल होगा? बिल्कुल नहीं। तो प्राइवेट सोच के बनाइएगा। अगर आप प्राइवेट लिख देंगे तो ये इनहेरिटेंस प्राइवेट इनहेरिटेंस कहलाएगा। अभी दिस इज पब्लिक इनहेरिटेंस। तो प्राइवेट इनहेरिटेंस लिखने पे ऊपर का सामान नीचे आता है। ऊपर से क्या क्या नीचे आता है? प्रोटेक्टेड सामान नीचे आता है और पब्लिक सामान नीचे आता है। क्या ऊपर का प्राइवेट सामान नीचे आता है? नहीं आता। प्राइवेट तो इनहेरिट ही नहीं होता ना। तो ऊपर का प्रोटेक्टेड सामान नीचे आता है। पब्लिक लिखने से वो प्रोटेक्टेड ही रहता है, मगर प्राइवेट लिखने से वो प्राइवेट बन जाता है। और अगर एक बार प्राइवेट बन गया तो फिर वो नीचे फर्दर इनहेरिटेंस चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मतलब दिस विल टर्मिनेट द हायरार्किकल चेन। इफ यू विश टू टर्मिनेट द हायरार्की, कि आगे और सब क्लास बनाना अलाउड नहीं है, तो इसको प्राइवेट लिख दीजिएगा। यहां आने के बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर पब्लिक और प्राइवेट तो बता दिया, प्रोटेक्टेड में क्या होगा? प्रोटेक्टेड में ऊपर से नीचे आई चीजें, सारी चीजें प्रोटेक्टेड बन जाएंगी। ये प्रोटेक्टेड था, यहां पे आके प्रोटेक्टेड ही रहेगा क्योंकि प्रोटेक्टेड लिख दोगे यहां। मगर ध्यान रखना, जो चीजें यहां पब्लिक थी, कंस्ट्रक्टर की तो बात ही नहीं करनी है ना। ये तीन फंक्शंस ये अभी कैसे हैं? पब्लिक। अगर प्रोटेक्टेड लिखोगे तो यहां आके कैसे हो जाएंगे? प्रोटेक्टेड। अगर प्रोटेक्टेड हो गए तो इनहेरिट तो हो जाएंगे, मगर मेन में कॉल नहीं हो पाएंगे। मेन में कॉल नहीं हो पाएंगे। आपने देखो मेन में आके क्या किया था? चाइल्ड क्लास के लिए कॉलिंग की थी प्लस प्लस ऑपरेटर की। ऑपरेटर प्लस प्लस क्या था? पब्लिक, तो कॉल हो रहा था। मगर अगर वो यहाँ आके प्रोटेक्टेड बन गया, यहाँ प्रोटेक्टेड लिख दोगे तो प्रोटेक्टेड बन जाएगा। फिर आप कॉलिंग करेंगे तो कॉलिंग नहीं हो पाएगी। प्रोटेक्टेड डेटा कैन बी इनहेरिटेड बट कैनॉट बी एक्सेस्ड इन मेन। तो पब्लिक में, प्राइवेट में, प्रोटेक्टेड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो हर एक को समझना जरूरी है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब पढ़ लेते हैं क्या है। When base class is privately inherited by the child, public members of the base become private members. तो ऊपर का जो सामान था पब्लिक मेंबर्स का, ऊपर का जो भी सामान नीचे आएगा ना, सिंपल सी बात है, प्राइवेट इनहेरिटेंस है तो सब कुछ प्राइवेट बन जाएगा। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है तो सब कुछ प्रोटेक्टेड बन जाएगा। पब्लिक इनहेरिटेंस में जो जैसा था वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोले तो यथास्थिति बनी रहेगी। अब आप कहोगे सर क्या बोला, है ना? यथास्थिति मीन्स नथिंग इज गोइंग टू चेंज। Public inheritance, whatever was public will be inherited as public. Items which were protected will remain protected. Simple. किसी को कोई कंफ्यूजन इन तीनों बातों में? इसीलिए ज्यादातर लोग पब्लिक यूज करते हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस यूज करते हैं। ज्यादातर केसेस में हम पब्लिक ही लिखा करेंगे। प्राइवेट तो तब लिखेंगे जब आपको हायरार्की ब्रेक करनी है, आगे नहीं भेजना है सामान को। जरूरत के हिसाब से होगा काम, जैसी जरूरत वैसा काम। तीन चीजें हो सकती हैं, मैंने तीनों आपको बताई हैं। देखो एक ये चार्ट आ गया, जो बातें मैंने बोली थी वो सब यहाँ पे समराइज की गई हैं ताकि एग्जाम में याद रहें। एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, एक्सेसिबल प्राइवेट चीजें कहाँ कहाँ से एक्सेसिबल होती हैं? अपनी क्लास में तो एक्सेस हो जाती हैं। क्या चाइल्ड में एक्सेस होती हैं? नो। मेन में एक्सेस होती हैं? नो। प्रोटेक्टेड। अपनी क्लास में एक्सेस होता है? यस। चाइल्ड में? यस। मेन में? नो। पब्लिक? सब जगह यस। ठीक है, तो अगर जिसको ये पब्लिक अच्छा लग रहा है ना, वो मुझे बच्चा ही अच्छा नहीं लगेगा। फिर पब्लिक मत बना देना, फिर डेटा सिक्योरिटी की बात कैसे करोगे? आप बोलोगे सर सब जगह एक्सेसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता बेटा। रीजन फॉर मूविंग टू ऊप्स इज डेटा सिक्योरिटी। सो वी कैनॉट मेक एवरीथिंग एज पब्लिक। फिर तो स्ट्रक्चर्स में काम चलाते हैं ना सीम में, है ना? तो पब्लिक तो जरूरत के हिसाब वाली चीजों को किया जाएगा। प्राइवेट प्रोटेक्टेड में डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ पे समराइज कर दिया गया एक चार्ट में। कोई डाउट है तो बताओ। अब वो टाइप्स ऑफ डेरिवेशन
Types of derivation, we have public derivation, we have protected or private derivation. Derivation मतलब inheritance. Public inheritance, protected inheritance, private inheritance. पीछे चलो. Public inheritance, private inheritance और protected inheritance. तीन चीजें हो सकते हैं ना यहाँ पे. उन्हीं को बता रहा है स्लाइड में क्या है, तो देख लेते हैं. टाइप्स में तीन टाइप्स होते हैं. बेस कैन हैव 3 सेक्शंस, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. डिराइव्ड बनाते समय यू कैन प्रेफर राइटिंग पब्लिक और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट. ठीक है, इज दिस क्लियर? So this much learning I think is enough for today. We'll look at the topics again. सारी चीजें दोबारा से डिस्कस करेंगे डिटेल में अपने नेक्स्ट सेशन में. So guys, this was all for today and I shall continue with the topic in my next video soon. But before leaving for the day, I would request you to kindly like my video and subscribe the channel. Thank you.